ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਰੀਬਨ ਮੁਤੱਸਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਨੁਮਾਈ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਨੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਵੈਸ਼ ਆਤਿਸ਼ ਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਨੀ। हे अकाल पुरख, हे खुदा, तू दर्शन देंदा है, फिर बुरका कर लेना है, पर्दा कर लेना है। जद झलक दिखा के तू पर्दे दे चला जाना है, बुरका कर लेना है, तो साडे वेखण दी इच्छा होर भड़क उठती है, ते तेरी कीमत भी ज्यादा फिर हो जाती है, तू महंगा हो जाना। इस वास्ते ऐ खुदा, तू साडे सामने प्रगट होके रह, तू बुरके दे च ना जा। भाई नंद लाल जी महाराज दे सामने जद ये शेर आया है, तो आपने इसकी सुधाई की है। दीवाने गोया दी एक नज़म दे राहें आप शेख सादी नू संबोधन करते हुए कहते ने, ताऊ के हम हजाबे खुदी यार खुश लका चेकुनद। ऐ शेख सादी, जद खुदा दा दीदार ना होवे, जद परमात्मा ना दिखाई देवे, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੇ। ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਹ, ਪਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਚ ਉਹ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਲਚਲ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਦੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਰਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਔਰ ਗੁਰੂਗਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਰੋਚਕ ਤੇ ਕਰਣਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬੜੇ ਕਰਣਾ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਇਤਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਚ ਨੇ, कुछ ऐसे ने 10-15 कदम चले ने, और कुछ ऐसे ने सिर्फ एक कदम चले ने। कुछ ऐसे ने जो सिर्फ रस्ता ही पुछदे ने, चलदे नहीं। पर इस दुनिया दे कुछ ऐसे भी बदकिस्मत ने जो भुल के कदी रस्ता भी नहीं पुछते, उन्हां नूं रस्ता पुछण दी भी लोड़ नहीं है। एक ते ओ जो मार्ग भी नहीं पुछदे,
पर एक ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ द्वार ਤੇ ਦਸਤਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, द्वार ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो हाफिज कहंदे ने ऐ खुदा तेरे मार्ग ते मैं चल ते पिया, पर मैं सुनिया सी तेरे मार्ग दे शादियां ने खुशियां ने आनंद है खेड़ा है, पर मैनू ते कुछ होर देखण नूं मिलिया है। तो दीवाने हाफिज दी ये पहली नज़म है जिहदे च ओह कहंदे ने मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमल। ऐ खुदा तेरे मार्ग ते मैं चलते पिया, पर नित दियां परेशानियां, नित दा ही दुख, नित दी बेचैनी, नित दा ही झगड़ा। ये झगड़ा है पुराने संस्कारां नाल, ये झगड़ा है पुरानी परंपरा नाल, ये झगड़ा है पुराने जीवन दे ढंग नाल, ये झगड़ा है पुराने अनर्थ भरे विचारां नाल। तो कहंदे ने इत्थे नित दा झगड़ा है, इत्थे नित दियां परेशानियां ने, तेरे मार्ग ते चल के सकून नहीं मिलिया, रस नहीं मिलिया। बहुत वड्डी निराशा प्रगट कीती है, जैसे कोई कह देंदा है संसार दे च मैं जीवियां ते हां, सफलता ते मैं बहुत प्राप्त कीती, पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया। इस तरह कुछ फकीरां ने भी कहा है रियाजत ते बहुत की थी, इबादत ते बहुत की थी, बंदगी ते बहुत की थी, पर कुछ भी नहीं मिला। कई ते इस कदर निराश होए ने, उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते कदी दुआ भी नहीं निकलती, हुण ते अरदास वास्ते भी हथ नहीं जुड़ते। इतनी मायूसी, इतनी निराशा, इतनी इनकारी जज्बे। तो हाफिज कहंदे तेरे मार्ग ते चल के मैनू सकून नहीं मिले। चल मैं जरूर रहा, लेकिन नित दी बेचैनी, नित दे झगड़े। फिर जे कदी मैं सोचदा थोड़ा आराम कर लवां, बहुत चले थोड़ा विश्राम कर लवां, बस मैं विश्राम करन ही लगदा, अपना साजो समान सामने खलेर के रखदा और सौण दी करदा, तां जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमल। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा, जो कहंदा है अपने कचावे बन्नो ते कूच करो। अरब देशां दे कारवां चलदे सन, 100 150 उठां दे काफले। रात नूं विश्राम करना है, ਜਿਉਂ सवेरे कारवां चलदा सी उस तों पहरे नगारा वजा दिता जांदा सी, तैयारी करो छेती ते हुण चलना है। तो हाफिज कहंदे कदी मैं सोचदा विश्राम करा, बई रोज नमाज पढ़दा चलो अज नहीं पढ़नी, रोज तस्बीह फेरदा चलो अज नहीं फेरनी, रोज मस्जिद विच जाना अज नहीं जाना। इस तरह मनुख दे अंदर ख्याल पैदा हो जाता है बई मैं रोज नितनेम करदा चलो अज छड्डो, रोज गुरुद्वारे जाने चलो 1-2 दिन ना ही सही, रोज अमृत वेले उठदे चलो 2-4 दिन ना ही सही। ऐसा विश्राम करने की भावना पैदा हो जाती है। तो हाफिज कहते जद मैं तस्बीह एक पासे रख देना, मुसल्ला एक पासे रख देना, खुदा दी इबादत नूं भी एक पासे रख देना, चलो 2-4 दिन विश्राम करिए, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, तां जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद मैं मलहा, फिर कोई मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है और कहंदा है ऐ फकीर कूच कर। तो आवाज सुन के नगारे दी खिलेरे होया समान मैं फिर बनना, फिर कट्ठा करदा, फिर मैं पोटड़ी सिर ते रखदा, फिर मैं चलदा। फरीद कहंदे दर दरवेशी गाखड़ी चल्ला दुनिया भत, बन उठाई पोटली किथे वन्या गत। पंड चुकते लईए पर चलना बड़ा औखा, पर हुण पंड सुट्टी भी नहीं जाती क्योंकि बहुत कीमती है। पुराने तजर्बे ने, कुछ अनुभव है, कुछ गल लभी है, इस वास्ते इस पंड नूं सुटना भी बड़ी औखी गल है। भगत दी ये मुश्किल आउंदी है कि संसार दा रस वो वेख चुके, इस वास्ते संसार दी तरफ मुड़ना नहीं चाहता, ते निरंकार दा मार्ग बड़ा बिखड़ा, पहाड़ी रस्ता उस तो चढ़िया नहीं जाता।
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਚੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਸ ਫਰਿਆਦ ਮੀਦਾਰਦ ਕਿ ਬਰਬੰਦੇਦ ਮਹਿਮਲਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖਤ ਰੋਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ ਕੁਜਾਦਾ ਆਨੰਦ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮੌਜਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੁਖੜਾ। ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੈ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ ਕੁਜਾਦਾ ਨਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬੁਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ, ਰਵਾਨੀ ਇੱਕ, ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਇੱਕ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਹੱਥ ਨ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਦਰਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ 'ਚ, ਬਚਪਨ ਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਰਾਮ ਆਖ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। जब किश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। अंतिम समय रिश्तेदार आके घेर दिन, जद श्वास निकल दिन, भी राम कह वाहिगुरू कह, पर हुण किस तरह कह। हुण ते सागर दे तूफान आ गए, हुण ते लहरां उछल उछल के बाहर पै रही, हुण ते टकराव है, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਨੇ ਲਗਾ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਬੁਝਣ ਲੱਗਾ,
अज रोशनी का पता चलिया, अज प्रकाश का पता चलिया। तो बाबा फरीद कहते हैं, हथ ना लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला। ये अगन बड़ी सुंदर है, अग बहुत खूबसूरत है, पर अपना विच हथ ना पाई, इसनूं इस्तेमाल दे च लियावीं, भोजन पका छड्डी, होर जरूरी काम इस तो लै लई, पर अग दे च अपना हथ ना पाई, सड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये वेखण दे च खूबसूरत है, पर इस दे च हथ ना पाई। ये शब्द बाबे फरीद दा है। आखिरी पंक्तियां ने, कहे फरीद सहेलियो सौ अलाए सी, हंस चलसी डुमना ए तन ढेरी थी सी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा शब्द जो बाबे फरीद के शब्द नूं सामने रख के उचारण किया मेरे पातशाह ने। साहिब कहंदे ने, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघे वहेला, ना सरवर ना ऊछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा इको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। दोवां दी भाषा गालबन मुल्तानी है, मुल्तानी पंजाबी, रवानी भी इको है, तर्जे बयानी भी इको है, शैली भी एक है, करीबन करीबन मजमून भी इको ही है। एक दे च निराशा है, एक दे च आशा है, बस इतना फर्क जरूर है। फरीद कह रहे ने, तू बेड़ा बनाया ही नहीं पार होने वास्ते, ते उछलिया होया सरोवर जद सामने आएगा तो पार होना बड़ा औखा होगा। हुण इशारतन गल कर गए ने गुरु नानक देव जी महाराज, खोलते ने, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघे वहेला। तू जप ते तप दा बेड़ा बना, बड़े सौखे ढंग नाल लंघ जाएगा। फिर बाबा फरीद कहंदे, हथ ना लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला। अग दे च हथ ना पाई, जल जासे। साहिब कहंदे, तेरा इको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। तेरे नाम दे रस नाल मेरा जिंदगी दा चोला लाल हो गया, रत्ता है, विकारां दी अगन नहीं साड़दी। अज असी देखते हैं फायर प्रूफ बकायदा बस्तर निकल आए ने, किधरे अग लग जाए इन्हां कपड़ियां नूं पहन के अग बुझाण दी कोशिश करते ने। फायर ब्रिगेड दा जो अमला है, साहिब कहंदे, जिहड़ा नाम दा चोला पहन लैंदा है, ज्ञान दा चोला पहन लैंदा है, उन्होंने विकारां दी अगन नहीं साड़दी, उन्होंने विकारां दी तपश नहीं साड़दी। उस अग दे च रहिंदा होया भी अग तो बच जांदा है। तो जैसे इन्हां दो शब्दां दी शैली शब्दावली एक है, हाफिज ते नंद लाल दी नज़मां दी तर्जे बयानी ते रवानी एक है। हाफिज कहंदे ने, मरादर मंज़िले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक सारा ने साहिला। इसका जवाब देंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल, मरादर मंज़िले जाना हमा ऐशो हमा शादी, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमला। भाई साहब भाई नंद लाल, तर्जे बयानी शैली शब्दावली सब एक कोई है। हाफिज मार्ग दा रोना रो रहे ने, नंद लाल मार्ग दियां खुशियां दस रहे ने। एक विछोड़े दी अगन दे च तप रहा है, एक मिलाप दे रस दे च भेजे आ गया। एक दियां अखां वेखण नूं तरस रही ने, एक दियां अखां दे च वो आप ही बैठा, इन्ना अंतर है। बाकी दो नज़मां बड़ियां बुलंद ने। सूफी फकीर कह रहे हैं, मरादर मंज़िले जाना चे अमनो ऐश तू चूं हरदम, जिस मंजिल ते मैं चल पिया, जिस मार्ग ते मैं चल पिया, किथे चैन है, किथे खुशियां ने, नित दा गम है, नित दा दुख है। नंद लाल कहंदे, मरादर मंज़िले जाना हमा ऐशो हमा शादी, जिस रस्ते ते मैं चल पिया, नित दियां खुशियां ने, नित दा आनंद है, नित दे खेड़े ने, नित दियां मस्तियां ने। फिर हाफिज कहंदे ने, जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद महमलहा, जद मैं थोड़ा जिहा विश्राम करन दी सोचदा, अपना समान खलेर छड़दा, तां मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है। मैनू खलेरिया होया समान फिर समेटना पैंदा, फिर पोटली बननी पैंदी है, फिर चलना पैंदा है।
तो हाफिज कहंदे ने जरस फरियाद मीदारद के बरबंदेद महमलहा। भाई नंद लाल जी महाराज फरमान करते ने जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। मौत दा घड़ियाल बेहूदा वज रहा है। क्यों कि असी ते कदी पंड खोली नहीं, असी ते पोटड़ी बन के ही रखी हुई है। साडी नित चलने दी तैयारी, असी ते बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये नगारा ते उन्हां वास्ते वजे जो सुते पे ने ते जो तैयार ही बैठे ने, उन्हां वास्ते नगारा की मैंने रखदा है, उन्हां वास्ते मौत दा घड़ियाल की मैंने रखदा है। असी ते तैयार बैठे हैं, साडी नित चलने दी तैयारी। असी ते अपना मन खिंडाया ही नहीं, ते जद खिंडेलिया ही नहीं, समान खिलेरिया ही नहीं, ते पोटली की बनी है, पोटली ते बननी पई है। असी ते मन अपना जोड़ के ही रखे होया, असी ते तैयार बैठे हैं। मौत दा घड़ियाल एवें बेहूदा पिया वजदा है। ये ते उन्हां वास्ते है जो अचेत सुते पे ने। कई मनुख ऐसे ने जो थोड़ी जिहां शब्द विचार नाल जाग पैंदे ने, पर कुछ शब्द विचार नाल नहीं जागदे। उन्हां नूं करना रस नाल भरियां होईयां कुछ साखियां चाहीदियां, कहानियां चाहीदियां, कई उन्हां नाल भी नहीं जागदे। इबादत उपासना बंदगी इहदे नाल भी नहीं जागदे। तो कादर करीम ने दुख एक घड़ियाल बनाया है। दुख, दुख दी एक चोट, दुख परमात्मा दी तरफों करोपी नहीं है। केतियां दुख भूख सदमार ए भे दात तेरी दातार। हे अकाल पुरख, ये भी एक तेरी दात है। पर कई दुख दा घड़ियाल जो वजदा है, इहदे नाल भी नहीं जागदे। तो कादर करीम ने मौत दा नगारा बजाया। कोई अजीज अकारब चलाना कर जाता है, मन पवित्र हो जाता है, बैरागी हो जाता है, संसार तो मन उपराम हो जाता है। किसी अजीज नूं अपने कंधियां दे चुक के जद शमशान घाट तक ले जाईदा है, मन इतना पवित्र होता है जैसे कि एक ब्रह्म ज्ञानी दा होता है। मन संसार तो इतना उपराम होता है जैसे कि एक भगत दा होता है। मन संसार तो इतना उच्चा हो जाता है जैसे कि एक संत दा होता है। तो जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे में महमलहा। ये मौत दा घड़ियाल बेहूदा पिया वजदा है। ये ते उन्हां वास्ते वजे जो सुते पे ने। भाई साहब कहंदे ने साडी नित चलने दी तैयारी। असी ते मौत दी उड़ीक दे चां, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। जद बंदे नूं पता चल जाए तैयारी करनी है, जाना ही है, पहुंचना ही है अगे, तो फिर पकड़ हट जाती है। एक निक्का जिहा उदाहरण, एक स्टेशन मास्टर नूं मैं देखिया सी, वो अपने बाग बगीचे की बड़ी देख रेख करता सी। एक निक्का जिहा पत्ता भी किधरे सुक जाए तो माली नूं झाड़ पांदा सी, लड़दा सी उस नाल। लेकिन एक दिन मैं उसका उजड़िया होया बगीचा वेख के पुछ लिया, भई हुण तुहानूं कोई फिक्र नहीं, समुच्चा बगीचा उजड़ रहा है। कहने लगे हुण साडा ट्रांसफर हो गया है, बदली हो गई है, असी तब्दील होके चले जाना है, कौन खज्जल खुआरी करे। जब पता चल जाए चले ही जाना है तो फिर पकड़ हट जाती है। इस वास्ते भगत ते ऐसा कहते हैं, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। ये तो सब कुछ होंदा ही रहता है। बंदे हस के भी चुप कर रहिंदे ने, बंदे रो के भी चुप कर रहिंदे ने। परम संत कदी रुकदे नहीं, चलदे ही रहंदे ने। ना हासा उन्हां नूं रोकदा है, ना रोना उन्हां नूं रोकदा है। आखिर मंजिले मकसूद ते वो पहुंच जांदे ने। तो नंद लाल कह रहे ने, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमल। हाफिज कह रहे ने, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। हनेरी रात है, इकल्ला हां, नाल मेरे कोई नहीं, रस्ते दे दरिया है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, घुमण घेरियां च मैं फस गया, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। हुण ऐसी जिहड़ी मेरी हालत है, इस दुख नूं ओ की जानन जिहड़े अजे भी किनारे ते खड़े ने, साहिल दे किनारे ते, दरिया दे कंडे ते खड़े हैं। एक आलम दा कहना है, हकारत से न देखें अहले तू साहिल मौजे तूफान को। हकारत से न देखें अहले साहिल मौजे तूफान को, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं।
ठीक है तू किनारे ते खड़ा होके तमाशा वेख रहा है, पर तेनू पता नहीं कदी ऐसी लहरां भी उछलदियां किनारे भी डुब जाते, कंडे भी गर्क हो जाते। जिस गल दा बंदा माण करदा है वो माण नहीं रहिंदा। ऐसी लहर उठती है, ऐसी लहरां चलदियां। तो हाफिज कह रहे ने अंधेरी रात है पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, कुजादा निंदे माल हाले मां सुबक साराने साहिल हान। भाई साहब भाई नंद लाल इसका जवाब देंदे ने। भाई साहब कह रहे ने खुदा हाजर बबदाइम बबींदी दारे पाकशरा न गर्दा बो दरो आयल न दरियाओ न साहिल। भाई साहब कहंदे तू कहंदा मैनू पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, खुदा हाजर बवदाइम मैनू खुदा हाजिर नाजिर दिखाई दे। तू कहना मैं कल्ला हाँ, मेरा मुर्शद मेरे नाल है, मैं कल्ला नहीं है। तू ये कहना है कि मैं घूमण घेरियां च फस गया, पर मेरे मुर्शद ने मैनू ऐसे मार्ग ते तोरिया ही नहीं जिथे मैं घूमण घेरियां च फस जावां ते भटक जावां। खुदा हाजिर बवदाइम बबींदी दारे पाकशरा न गर्दा बो दरो आयल न दरियाओ न साहिल। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐसे मार्ग ते तोरिया है जिथे वासना दा दरिया नहीं पैंदा, जिथे लोभ दियां लहरां नहीं उछलदियां, ते जिथे तनहा नहीं चलना पैंदा। गुरु दा शब्द नाल है, गुरु मेरे संग सदा है नाल है, कल्ला मैं नहीं हां। और रस्ते दे दरिया नहीं है, और तू कहना पारला कंडा ही नहीं दिखाई देंदा, खुदा दिखाई नहीं देंदा। गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दी मेहर द्वारा मैनू ते खुदा हाजिर नाजिर दिखाई दे रहा है। खुदा हाजिर बवदाइम बबींदी दारे पाकशरा न गर्दाबो दरो आयल न दरियाओ न साहिला। भाई साहब भाई नंद लाल इस गजल दे इशारा कर गए ने, जे रब दे मार्ग ते भी रोंदे पिटदे होए जाना है तां इन्हां रोंदे पिटदियां नूं वेख के किसी ने इस मार्ग ते चलना नहीं। अगर इतनी निराशा ही प्रगट करनी है, इतना दुख प्रगट करना है इस मार्ग दा भी, तां फिर इस मार्ग ते किसी ने नहीं चलना। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने इस मार्ग ते नित दियां खुशियां ने, नित दा आनंद है, नित दा खेड़ा है। इस मार्ग ते तन्हाइयां नहीं ने, गुरु अठे पैर नाल है, अंग संग है, लोक दे च भी नाल है, पर लोक दे च नाल है। इस मार्ग दे च अंधकार नहीं है, गुर शब्द दी ज्योति है, गुर शब्द दा चानना है। जापदा है भाई नंद लाल दी आत्मा ऐसा भी कह रही है, ऐ हाफिज काश कि तैनू भी गुरु गोबिंद सिंह जैसा मुर्शद नसीब आउंदा तां रस्ते दे ए रोने तू ना रोंदा, रस्ते दी इस भटकण दा तू जिक्र ना करदा, और तू भी कहना सी खुदा दा मार्ग तां फुल्लां दी सेज है, पर हुण तू कह रहे हैं खुदा दा मार्ग कंडियां दी सेज है, निरी कंडियां दी सेज है। नंद लाल कहंदे नहीं, ये फुल्लां दी सेज है, ये संवरिया होया मार्ग है, ये मरू थल नहीं। रस्ते दे गुलिस्तान ही गुलिस्तान है, और इस गुलिस्तान दे चों लंघ के जद कोई परमात्मा तक पहुंचदा है, वो ऐसा बाग है जिहदे च लीनता इस ढंग दी नसीब हो जाती है। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी।